Assalamu alaikum. I am Dr. Zahida Parveen, PhD in Special Education from University of the Punjab, Lahore, and working as Assistant Professor of Special Education at University of Education, Lower Mall Campus, Lahore. This is the course of Teaching of Mathematics to Mentally Challenged Children, and this course is from MA Special Education with an area of specialization of visual impairment. The code of this course is SPED 4137 and this is a 3 credit hours course. The title of today's lesson is Developing Instructional Objectives. In today's lesson, we are going to discuss that how objectives for a lesson plan can be developed following Bloom's taxonomy, and we will discuss different examples of developing objectives according to our area of specialization, that is visual impairment. Before going to discuss that how instructional objectives should be look like and how these can be developed, first we will briefly discuss Bloom's taxonomy, as we have already done in our previous lecture, that there are 3 different domains in Bloom's taxonomy, that is cognitive domain, psychomotor domain and affective domain, and then there are different levels following these 3 domains. These domains guide us about developing objectives regarding different domains like cognitive, psychomotor or affective. Now we will discuss that how how instructional objectives should be look like. Our instructional objectives should be concise. That means at the most objectives should be 1 or 2 sentences in length. Very lengthy objectives should be avoided. बहुत लंबी स्टेटमेंट्स जब आप ऑब्जेक्टिव्स की बनाते हैं तो दे लूज देयर मीनिंग्स और वो इतने इफेक्टिव नहीं लगते. The second characteristic of instructional objectives is that they should be singular. That means an objective should focus on one and only one aspect of behavior. That means at a time your one objective should be focusing only one behavior of the child. आपका फोकस जो है वो किसी एक डेवलपमेंट, किसी एक बिहेवियर की डेवलपमेंट के ऊपर होना चाहिए एक ऑब्जेक्टिव के अंदर एट अ टाइम. आप ये नहीं कर सकते कि कॉग्निटिव डोमेन और साइकोमोटर या अफेक्टिव या इनके में से किसी डिफरेंट लेवल्स जो जब हैं इनके, तो एट अ टाइम कोई से 2 लेवल्स को आप फोकस कर रहे हो, ऐसा नहीं हो सकता. आपका एक अच्छा ऑब्जेक्टिव ऐसा ऑब्जेक्टिव होता है जो कि अपने मीनिंग्स में सिंगुलर हो. दैट मीन्स कि वो एट अ टाइम किसी एक ही चीज़ को एड्रेस कर रहा हो, किसी एक बिहेवियर को एड्रेस कर रहा हो. Next characteristic of instructional objective is that describe expected behaviors. That means an objective should indicate the desired end product, not merely a direction of change or a teacher activity. So आपका जो इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव है वो बड़ा क्लियरली टारगेटेड होना चाहिए और वो सिर्फ और सिर्फ इन चीज़ जो आपका आउटपुट होता है, इंस्ट्रक्शन का आउटपुट जो क्लास के अंदर होता है उसके ऊपर फोकस होना चाहिए, उसके ऊपर बेस होना चाहिए. तो जो एक्सपेक्टेड बिहेवियर्स होते हैं, दैट व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग दैट द चाइल्ड विल डेवलप एट द एंड ऑफ द इंस्ट्रक्शनल एक्टिविटी, तो उसके एंड पे जो हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि बच्चा इस काबिल हो जाएगा कि उसे कोई भी एक एंड प्रोडक्ट वो उसको अचीव करने के काबिल हो जाएगा, तो ये हमारा इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव के अंदर स्टेटेड होना चाहिए. Next characteristic of the instructional objective is that an instructional objective should be realistic. That means an objective should focus on observable behavior, not on teacher illusion or indefinable traits. तो आप कोई बहुत बड़े इस तरह के टारगेट्स नहीं सेट कर सकते एक ऑब्जेक्टिव के अंदर जो कि अनरियलिस्टिक हों या ऐसे जो कि इल्यूजन्स टीचर की, यानी टीचर खुद से ये सोच रहा है कि बच्चा इस काबिल हो जाएगा कि वो ये भी कर लेगा, ये भी कर लेगा, ये भी कर लेगा, तो वो उतने रियलिस्टिक नहीं होते. तो रियलिस्टिक इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव क्या होता है, जो कि एक ऐसा चेंज जो बच्चे के अंदर ऑब्जर्वेबल बिहेवियर में, उसके ऑब्जर्वेबल बिहेवियर में चेंज आए.
तो उसको जिसको हम ऑब्जर्व कर सकें तो उसको हम कहते हैं कि ये एक रियलिस्टिक इंस्ट्रक्शनल गोल है या ऑब्जेक्टिव है। तो इसको हमें सिर्फ टीचर्स की एक्सपेक्टेशंस के ऊपर नहीं फोकस करना जब हम डेवलप कर रहे होते हैं। तो बेसिकली हमारा टारगेट ये होता है कि जो बच्चा है, जो स्टूडेंट हैं क्लास के, उनके अंदर क्या और कितना ऑब्जर्वेबल बिहेवियर चेंज होगा। Next characteristic of instructional objective is that we should use definite terms. That means verbs जो हैं वो हमें बड़े ख़ास definite use करने चाहिए. Terms such as write, define, list and compare have definite meanings, whereas terms such as know, understand and apply हैव अ मल्टीट्यूड ऑफ मीनिंग्स। सो हमारा बड़ा ही पर्टिकुलर मीनिंग्स के साथ जो वर्ब्स होते हैं, हमें सिर्फ वही वर्ब्स यूज़ करने चाहिए जो कि इंस्ट्रक्शनल एक्टिविटीज़ के अंदर एज अ प्रोडक्ट, एज एन एंड प्रोडक्ट उनको हम डिफ़ाइन कर सकें। फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें इस स्लाइड में आप जो देख रहे हैं उसमें अगर राइट का आप एग्ज़ाम्पल लेते हैं तो राइट की एग्ज़ाम्पल जो है दैट मीन्स कि द स्टूडेंट्स विल बी एबल टू राइट डाउन लाइक स्मॉल अल्फ़ाबेट्स ऑफ English language. So what writing activity is denoting us, that is the end product what we are focusing in, कि बच्चा जो है उसको राइटिंग के ऊपर हम फोकस कर रहे हैं कि बच्चा राइट करेगा। तो ये बड़ा डेफिनेट किस्म का वर्ब्स हैं जो एग्जांपल्स यहाँ पर दी हुई हैं और इसी तरह के वर्ब्स यूज़ होने चाहिए। Now we will talk about a comparison, that is the comparison between performance outcome and instructional objectives. These two are different terms. They do not resemble with each other, but unfortunately कभी-कभी हम इन दोनों को आपस में confuse कर देते हैं, performance outcome और instructional objective को। तो हम देखते हैं कि how they are different from each other. First one is performance outcome, and what is it? That outcomes help teachers determine what is worth learning. So ये टीचर के बिहाफ पर होता है। जब टीचर ये सोचता है कि वो कौन सा आउटकम होगा, वो परफॉर्मेंस आउटकम कौन सा है जो मेरी क्लास के एज एन एंड प्रोडक्ट उसको लिया जा सकता है। तो ये टीचर के बिहाफ पर टीचर ने ये उसको हेल्प करता है परफॉर्मेंस आउटकम। On the other hand, instructional objective क्या करता है? Objectives help these objectives help teachers to design effective instructions. तो जो इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स हैं वो टीचर्स को किस तरह से हेल्प करते हैं कि वो अपनी किस तरह से अपनी इंस्ट्रक्शंस को इफ़ेक्टिवली डिज़ाइन कर सकते हैं। तो बेसिकली ये जो इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो टीचर के लिए एक गाइड के तौर पर काम करते हैं फॉर द पर्पज़ ऑफ डिज़ाइनिंग इंस्ट्रक्शंस। नेक्स्ट जो पॉइंट ऑफ कंपैरिजन है बिटवीन दीज टू टर्म्स, दैट इज़ परफॉर्मेंस ऑफ आउटकम एंड इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव। परफॉर्मेंस आउटकम जो है दैट इज़ अ परफॉर्मेंस आउटकम रिप्रेजेंट्स अ डिस्क्रिप्शन ऑफ अ पर्टिकुलर बिहेवियर और परफॉर्मेंस अ लर्नर इज एक्सपेक्टेड टू पोजेस फॉर एवर फॉलोइंग एन इंस्ट्रक्शनल एक्सपीरियंस। सो एक इंस्ट्रक्शनल एक्सपीरियंस के एंड प्रोडक्ट के तौर पर एक जो लर्नर है वो किस तरह की परफॉर्मेंस शो करेगा और किस तरह का बिहेवियर शो करेगा, तो ये उसकी परफॉर्मेंस आउटकम में ये रिप्रेजेंट किया जाता है। तो परफॉर्मेंस आउटकम जो है ये एक ब्रॉडर टर्म है जो सिर्फ और सिर्फ बिहेवियर या एक जो आउटपुट होता है उसको स्पेसिफाई कर रही होती है। On the other hand, instructional objective expands upon performance outcomes by specifying the classroom conditions under which performance or behaviors will occur during practice and assessment, as well as any criteria learners must meet which indicate that specific knowledge, skills and attitudes have been learned. So instructional objectives जो हैं वो performance outcome की एक बहुत specific form है जिसमें पर्टिकुलरली ये स्पेसिफाई किया गया होता है कि कौन सी क्लासरूम कंडीशंस होंगी जिसमें वो अपना बिहेवियर स्टूडेंट्स शो करेंगे जो उन्होंने लर्न किया है, या जो है वो किस तरह से जो अपने लर्न बिहेवियर्स हैं उनको ड्यूरिंग प्रैक्टिस और असेसमेंट किस तरह से वो शो करेंगे, और इसी तरह से जो डिफरेंट क्राइटेरिया है
कि कौन सा किस लेवल तक जो है वो लर्नर्स किसी भी पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को लर्न करेंगे या एक बिहेवियर को एग्जिबिट करेंगे। तो उसका एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया जो है वो भी मेंशन किया जाता है इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स में, और ये हमें इंडिकेट करता है कि किस हद तक जो स्पेसिफिक नॉलेज या स्किल्स हैं या एटीट्यूड्स हैं वो किस हद तक बच्चों ने लर्न कर लिए हैं। क्योंकि जब हम लर्निंग की बात करते हैं तो ये डिफरेंट 3 स्पेसिफिक क्राइटेरियाज़ हैं जो कि जिन्हें आप कह सकते हैं कि ये लर्निंग का पार्ट होते हैं, या नॉलेज गेन करते हैं स्टूडेंट्स, या स्किल्स में मास्टरी जो है वो अटेन करते हैं, या फिर अपने एटीट्यूड्स में चेंजेस लेकर आते हैं। तो ये दीज 3 आर द टाइप्स ऑफ लर्निंग, और इन तीनों में से किसी भी एक एरिया के अंदर जो आया वो आपका ऑब्जेक्टिव शो कर रहा होता है परफॉर्मेंस बच्चे की। तो इस स्लाइड में हमने देखा है कि परफॉर्मेंस आउटकम और इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव जो है वो बेसिकली किस तरह से एक दूसरे से डिफरेंट हैं। तो इन शॉर्ट ये कि इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव जो है वो बेस करता है ऑन द परफॉर्मेंस आउटकम, और वो एक बेसिकली ऑब्जेक्टिव एक्सपेंशन फॉर्म होती है आउटकम की। नेक्स्ट जो पॉइंट है ऑफ कंपैरिजन, दैट इज परफॉर्मेंस आउटकम्स दैट स्टूडेंट्स विल ऐड डबल डिजिट नंबर्स। इसमें हम एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे इस स्लाइड में, और परफॉर्मेंस आउटकम की एग्जांपल जो है वो स्टूडेंट्स विल ऐड डबल डिजिट नंबर्स। अब ये एक ऐसा बिहेवियर है कि जिसमें बच्चे जो हैं वो एडिशन की स्किल्स को शो करेंगे कि जब वो वंस दे हैव मास्टर द स्किल ऑफ एडिशन तो वो इस काबिल हो जाएंगे कि वो डबल डिजिट नंबर्स को ऐड कर लेंगे। ऑन द अदर हैंड इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव में आप इसकी एग्जांपल को देखिए, गिवन टू डबल डिजिट नंबर्स written in equation form, the students will add them together। तो बड़ा पर्टिकुलर हमने कर दिया कि जो स्पेसिफिकेशन हमने क्या दी है ऑब्जेक्टिव के अंदर कि जो डबल डिजिट नंबर्स हैं वो एक इक्वेशन फॉर्म में लिखे हुए होंगे। इक्वेशन फॉर्म होती है जिसमें हमने फॉर एग्जांपल सामने आपने लिखा है 52 + 67 और 52 + 42 वट एवर, 2 डिजिट्स आपने लिए हैं और वो इक्वेशन की फॉर्म में लिखे हुए हैं, और उसके आगे इज इक्वल टू के बाद ब्लैंक है या उसके इक्वल टू के बाद स्टूडेंट्स हम सपोज करते हैं कि बच्चा जो है वो वहाँ पर उसका आंसर लिखेगा। तो ये इक्वेशन फॉर्म में जब क्वेश्चंस आते हैं एडिशन के तो उनको परफॉर्म करेगा। तो ये इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव इस तरह से हमने स्पेसिफाई कर दिया, और ये ज़्यादा एक स्पेसिफिक फॉर्म हो गई है परफॉर्मेंस आउटकम की। नेक्स्ट आप देखें कि एक और एग्जांपल है जिससे के थ्रू आप ज़्यादा बेटर तरीके से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं बिटवीन परफॉर्मेंस आउटकम एंड इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव। सो हियर इज़ एन एग्जांपल दैट स्टूडेंट्स विल डिज़ाइन कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट्स। सो ब्रीफ सी एक स्टेटमेंट है, कॉम्प्रीहेंसिव है, टू द पॉइंट है, और इसमें एक बिहेवियर क्या एग्जिबिट करेंगे स्टूडेंट्स कि वो डिज़ाइन कर लेंगे कंट्रोल्ड प्रॉपर एक एक्सपेरिमेंट को डिज़ाइन कर लेंगे। सो इसमें हम जो हमारा डिज़ायरेबल आउटकम है या जो एक डिज़ायरेबल बिहेवियर है दैट इज़ डिज़ाइनिंग ऑफ कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट्स। तो ये परफॉर्मेंस आउटकम की एग्जांपल है और ये एक ब्रॉडर लेवल पर शो कर रही है बच्चों के आउटकम को या एक डिज़ायर्ड बिहेवियर को। दूसरी साइड पे अगर हम इसी जैसे मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड्स में बताया कि इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स आर एक्सपेंडेड फॉर्म्स ऑफ performance outcome. Now we will see that how expanded form an instructional objective is. Given a problem and hypothesis, the students will design a controlled experiment that includes a control group that is not subject to the independent variable, an appropriate dependent variable, and at least 3 extraneous variables held constant between all experimental groups. So इस इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव में यू हैव ऑब्जर्व्ड दैट दीज आर द वेरी स्पेसिफिक कंडीशंस। बड़ी डिटेल से बता दिया टीचर ने डिज़ाइन करते हुए ऑब्जेक्टिव कि क्या क्या चीज़ें बच्चों के पास अवेलेबल होंगी एंड हाउ दे विल बी एबल टू design a controlled experiment. You have already learned these terms in your कोर्स ऑफ रिसर्च, और वहाँ पर हमने बड़ी डिटेल से इन टर्म्स को ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं कि एक प्रॉब्लम और हाइपोथेसिस गिवन होता है स्टूडेंट्स को इन ऑर्डर टू डिज़ाइन अ कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट। तो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च से रिलेट कर रहा है ये ऑब्जेक्टिव,
कि अगर एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में स्टूडेंट्स ने कोई एक्सपेरिमेंट डिज़ाइन करना है या किसी और ऐसे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के अंदर उसने एक्सपेरिमेंट्स को डिज़ाइन करना है, तो उसके लिए कुछ स्टैंडर्ड चीज़ें गिवन होती हैं। और यहाँ पर क्या चीज़ गिवन है, गिवन अ प्रॉब्लम एंड हाइपोथेसिस, यानी बच्चे के पास एक ऑलरेडी उसको एक प्रॉब्लम पोज किया जाएगा, प्रॉब्लम उसको गिवन होगा और उस प्रॉब्लम की बेस पर students will design a controlled experiment that includes definitely controlled experiment mean क्या करता है, उसकी meaning क्या है, that it will be including control group that is not subject to the independent variable। अगर आपको याद हो तो कंट्रोल ग्रुप की डेफिनेशन में यही था कि कंट्रोल ग्रुप जो है उसको इंडिपेंडेंट वेरिएबल से इंट्रोड्यूस नहीं करवाया जाता। और क्या होगा यहाँ पर, एन अप्रोप्रिएट डिपेंडेंट वेरिएबल एंड एट लीस्ट 3 एक्सट्रीनियस वेरिएबल्स। तो जो एक्सपेरिमेंट डिज़ाइन करने जा रहे हैं स्टूडेंट्स उसमें एक कंट्रोल ग्रुप होगा, ठीक है। कंट्रोल ग्रुप वो होता है जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल से एक्सपोज्ड नहीं होता। और क्या होगा, एक डिपेंडेंट वेरिएबल होगा, जाहिर है जिसके असर देखा जाएगा किसी उसके ऊपर रिस्पोंडेंट्स के ऊपर, एंड एट लीस्ट 3 एक्सट्रीनियस वेरिएबल्स हेल्ड कांस्टेंट। यानी उसमें क्योंकि कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट की अपनी एक डेफिनेशन है, कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट के अंदर ये भी एक उसकी एक इसका एक पार्ट होता है कि जो डिफरेंट एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स होते हैं उनको कंट्रोल किया जाता है, उनको कांस्टेंट किया जाता है और उनके अफेक्ट को रोका जाता है एक्सपेरिमेंट के ऊपर। तो एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स के इफेक्ट्स को रोकेगा वो स्टूडेंट, और ये बिटवीन ऑल एक्सपेरिमेंटल ग्रुप्स। तो जितने भी एक्सपेरिमेंटल ग्रुप्स बनाएंगे स्टूडेंट्स उनके अंदर इन तीनों चीज़ों की जो इंटरेक्शन है उसको रोका जाएगा और इस तरीके से एक कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट को डिज़ाइन किया जाएगा। सो दिस इज़ एन एग्जांपल ऑफ एंड दैट हाउ इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव इज़ एन एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ परफॉर्मेंस आउटकम। तो जितना इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव को आपने स्टडी किया है, अभी इस एग्जांपल को आपने देखा है, तो बेसिकली इसको अगर आप एक आउटकम की फॉर्म में एक सेंटेंस के अंदर उसको ब्रीफली स्टेट करेंगे तो वो इसकी फॉर्म सिंपल होगी, स्टूडेंट्स विल डिज़ाइन कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट्स। तो जब हमने उसकी कंडीशंस और बड़ा स्पेसिफिक कर दिया उसको, तो फिर हम उसको कहेंगे कि वो इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव की फॉर्म है। Now we are going to discuss that how good instructional objectives can be constructed. There are few steps we have to follow in order to construct good and meaningful instructional objectives, and here is the step 1. Step 1 is determine performance. So it is very essential that before developing any instructional objectives, the teacher must have to determine the performance level of the students, कि हम डिज़ायरेबल क्या है, डिज़ायरेबल आउटकम जो टीचर चाहता है उस एक पर्टिकुलर लेसन के रिज़ल्ट में, तो वो परफॉर्मेंस क्या है जो टीचर चाहता है कि बच्चे परफॉर्म करें एट द एंड ऑफ द लेसन। द परफॉर्मेंस इज़ अ डिस्क्रिप्शन ऑफ द बिहेवियर दैट लर्नर्स आर एक्सपेक्टेड टू परफॉर्म। ठीक है, तो ये उसकी डेफिनेशन है। एंड वन थिंग मोर दैट वट एवर वी हैव डिसाइडेड दैट द परफॉर्मेंस लेवल दैट द स्टूडेंट्स विल बी एबल टू परफॉर्म एनी specific behavior at the end of the lesson, that specific behavior should be measurable and observable. इसके बगैर जो है अगर आप कोई ऐसा सेट कर लेते हैं परफॉर्मेंस जो कि आप बाद में मेजरेबल नहीं है या ऑब्जर्वेबल नहीं है, आप उसको ऑब्जर्व ही नहीं कर सकते कि वो चेंज किस तरह से बच्चे के अंदर आ रहा है, तो या फिर जो है वो आप उसको प्रॉपरली मेजर नहीं कर सकते कि कितना चेंज आया है, तो वो आपका एक वेगस किस्म का परफॉर्मेंस ऑब्जेक्टिव आपका बनेगा, या इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव जो है वो बहुत वेग होगा। तो मेजरेबल होना चाहिए आपका इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव और ऑब्जर्वेबल होना चाहिए। नाउ स्टेप 2 इज़ आइडेंटिफाई एंड डिस्क्राइब द कंडीशंस। जो अभी हमने प्रीवियस एग्जांपल्स में यू हैव नोटिस्ड दैट वी वर यूजिंग अ वर्ड गिवन। तो गिवन जो है दैट मीन्स व्हाट द चाइल्ड विल बी प्रोवाइडेड विद, उसको क्या क्या चीज़ें प्रोवाइडेड होंगी, कौन सी इन्वायरमेंटल कंडीशंस, कौन सी क्लासरूम कंडीशंस उसको प्रोवाइडेड होंगी जिसके अंदर हम सपोज कर रहे हैं कि उसने कोई भी अपना डिज़ायर्ड बिहेवियर जो है वो या आउटकम उसको अचीव करना है। सो कंडीशंस रिप्रेजेंट अ डिस्क्रिप्शन ऑफ द सर्कमस्टांसेस अंडर विच द परफॉर्मेंस विल बी लर्नड एंड और कैरिड आउट, प्रैक्टिस एंड असेसमेंट और एवेलुएशन।
तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये हमें कंडीशंस को रिप्रेजेंट करती हैं कि किस तरह से एक पर्टिकुलर सर्कमस्टांसेस के अंदर बच्चा लर्न करेगा, और फिर ये भी है कि वो बच्चा लर्न करेगा एक किसी ख़ास एनवायरनमेंट के अंदर, और जो उसकी असेसमेंट का एनवायरनमेंट होगा वो भी पर्टिकुलरली गिवन होना चाहिए कि किस गिवन क्राइटेरिया के अंदर वो उसको परफॉर्म कर रहा होगा, अपनी परफॉर्मेंस को या लर्नड आउटकम को किस तरीके से परफॉर्म करेगा और किस कंडीशंस के अंदर परफॉर्म करेगा। Next is the step 3 of developing instructional objectives, and that is identify and describe the standard, that means criteria। तो ये हमें टीचर एज अ टीचर फर्स्ट ऑफ ऑल ये भी डिसाइड करना है, आइडेंटिफाई करना है और प्रॉपरली एक स्टेटमेंट की फॉर्म में उसको डिस्क्राइब भी करना है कि वो कौन सा स्टैंडर्ड है जो कि हम एक परफॉर्मेंस के लिए या एक बिहेवियर जो डिज़ायर्ड बिहेवियर आउटकम है उसके लिए हम स्पेसिफाई कर रहे हैं। तो उसके लिए एक स्टैंडर्ड एक प्रॉपर क्राइटेरिया भी हमें बच्चों को प्रोवाइड करना होगा इन आर स्टेटमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव। एंड अ स्टैंडर्ड इज़ अ डिस्क्रिप्शन ऑफ द क्राइटेरिया फॉर एक्सेप्टेंस ऑफ अ परफॉर्मेंस एज सफिशेंट इंडिकेटिंग मास्टरी ऑफ द ऑब्जेक्टिव। तो जब हम एक बच्चे को एक मिनिमम क्राइटेरिया प्रोवाइड करते हैं कि एटलीस्ट बच्चा जो है वो इस लेवल का की परफॉर्मेंस देगा या इस हद तक जो है वो अपना बिहेवियर शो करेगा, तो वो जो हम मिनिमम क्राइटेरिया बच्चे को प्रोवाइड करते हैं दैट इज़ कॉल्ड एज स्टैंडर्ड। और ये जो स्टैंडर्ड होता है ये हमारे इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव में दैट शुड बी स्टेटेड प्रॉपरली और क्लियरली उसको होना चाहिए। हाउएवर ये आगे है कि जो स्टैंडर्ड होता है वो एक ऑप्शनल भी है, उसको वो ज़रूरी नहीं है कि दैट शुड बी द पार्ट ऑफ ईच एंड एवरी इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव। So here it is that a standard is stated in the objective only when necessary। तो बहुत से ऐसे सोशल साइंसेस के सब्जेक्ट्स होते हैं जिसके अंदर आपको एक बड़ा स्पेसिफिक स्टैंडर्ड प्रोवाइड करना बच्चे के लिए स्टूडेंट्स के लिए टीचर्स के लिए पॉसिबल नहीं होता कि वो बच्चों के लिए एक स्टैंडर्ड को स्टेट करें। व्हेन द स्टेटेड परफॉर्मेंस रिक्वायर्स क्वालिफिकेशन टू इट, ये सिर्फ तब यूज़ होता है जब हमें एक मिनिमम क्राइटेरिया बच्चे को प्रोवाइड करना हो कि कम से कम तुम्हारी परफॉर्मेंस इस लेवल की होगी तो वो एक्सेप्टेबल होगी, अदरवाइज नहीं होगी। तो जहाँ स्टैंडर्ड जो है इसको स्टेट करना ये ऑप्शनल है। अगर ये आप अपने सब्जेक्ट की नीड्स और उसकी अकॉर्डेंस के अकॉर्डिंग जो है वो उसको स्टेट करते हैं टीचर्स तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छा है। वो एक इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो जाता है, उसके सारे कंपोनेंट्स कंप्लीट हो जाते हैं। लेकिन इन केस अगर आपका टॉपिक की ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं है कि जिसको एक्सेप्टेंस के लिए आपको एक प्रॉपर क्राइटेरिया बच्चे को देना ज़रूरी नहीं है, तो फिर आप इसको इग्नोर भी कर सकते हैं। जी, अब हम डिफरेंट एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे, एग्जांपल्स ऑफ इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स in order to clarify our concept. So here is the first example, that is given an object with clearly defined linear sides, students will estimate the object's length within 10 mm of its actual length। जी, तो इस एग्ज़ाम्पल में जो है वो तीनों जो हमारे स्टेप्स थे वो फॉलो किए गए हैं एंड वी हैव टू आइडेंटिफाई कि कौन सा स्टेप जो है वो कहाँ पर शो हो रहा है। सो फर्स्ट जहाँ से हमारा ये ऑब्जेक्टिव स्टार्ट हो रहा है दैट इज़ गिवन एन ऑब्जेक्ट विद क्लियरली डिफाइंड लीनियर साइड्स। तो हम ये मैथ्स का ऑब्जेक्टिव है, डेफिनेटली हम मैथ्स की क्लास में हैं। तो एक ऐसा स्टूडेंट्स को जब हम प्रोवाइड क्या कर रहे हैं, कंडीशन कौन सी प्रोवाइड कर रहे हैं कि बच्चों को एक ऐसा ऑब्जेक्ट दिया जाएगा जिसकी क्लियरली डिफाइंड लीनियर साइड्स होंगी, जो उसकी चारों साइड्स हैं वो क्लियरली डिफाइंड और लीनियर होंगी। तो ये गिवन है, एक कंडीशन हम बच्चे को प्रोवाइड कर रहे हैं कि हम उसको वो ड्रॉ फॉर्म में भी हो सकता है वो ऑब्जेक्ट, वो जो है वो कंक्रीट फॉर्म में भी बच्चे को अवेलेबल हो सकता है मैथ्स की क्लास में, व्हाटएवर। तो नेक्स्ट जो है वो डिज़ायर परफॉर्मेंस क्राइटेरिया क्या है, सॉरी परफॉर्मेंस का लेवल क्या है, व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम द चाइल्ड कि वो बच्चा उस पर्टिकुलर क्लास में उस गिवन कंडीशन के अंदर कौन सा अपना बिहेवियर जो है वो शो करेगा या आउटकम कौन सा शो कर रहा है। स्टूडेंट्स विल एस्टिमेट द ऑब्जेक्ट्स लेंथ,
तो बच्चे ने अल्टीमेटली करना क्या है कि ओवरऑल उस ऑब्जेक्ट जो हम उसको प्रोवाइड कर रहे हैं जिसकी लीनियर साइड्स हैं, तो उसकी टोटल लेंथ जो है वो एस्टिमेट करेगा स्टूडेंट। तो ये परफॉर्मेंस का हमारा आउटकम का जो हमारा एक एक्सपेक्टेड आउटकम है बच्चे का, वो ये है। और नेक्स्ट है विद इन 10 mm ऑफ इट्स एक्चुअल लेंथ। तो बच्चे के ये जो विद इन 10 mm ऑफ इट्स एक्चुअल लेंथ है, ये क्राइटेरिया है कि बच्चा जो है वो उसको जो हम लेंथ प्रोवाइड कर रहे हैं, जो उसको एक हमने ऑब्जेक्ट प्रोवाइड की है, वो उसके लिए उसका एक प्रॉपर क्राइटेरिया हम बच्चे को बता रहे हैं कि विद इन 10 mm ऑफ इट्स एक्चुअल लेंथ के अंदर आपने उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की लेंथ को कैलकुलेट करना है। तो ये एक एग्जांपल है एक स्टैंडर्ड ऑब्जेक्टिव की, जिसमें हम तीनों स्टेप्स को फॉलो कर रहे हैं और पिछली जो स्लाइड्स पर हमने सीखा है वो यहाँ पर अप्लाई हो रहा है। एक स्टैंडर्ड एग्जांपल लेने के बाद अब हम थोड़े से प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे, बिकॉज प्रॉब्लम्स को डिस्कस करना ज़रूरी इस वजह से है कि जो पुअरली रिटन ऑब्जेक्टिव्स हैं, जब हम उनको देखेंगे तो हमें अंदाज़ा होगा कि हमने इस तरह के वी आर नॉट रिक्वायर्ड टू डेवलप सच टाइप ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। तो मैं आपको ऐसी एग्जांपल्स दूंगी कि ऐसे ऑब्जेक्टिव्स आपने डेवलप नहीं करने। व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग फ्रॉम दिस पर्टिकुलर लेक्चर, तो वो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। बिगेस्ट प्रॉब्लम्स विद पुअरली रिटन ऑब्जेक्टिव्स इज़ चॉइस ऑफ वर्ड्स यूज टू इंडिकेट द टाइप ऑफ परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेड। तो सबसे बड़ी मिस्टेक जो हम करते हैं एज अ टीचर्स while we are writing objectives of our lesson plans, तो हम जो वर्ड्स को चूज़ करते हैं उस अपनी जो डिज़ायर्ड परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेड है हमारी बच्चे की तरफ से, उसको इंडिकेट करने के लिए जो हम वर्ड्स को चूज़ करते हैं वो हमारी चॉइस मिस्टेकनली हम गलत वर्ड्स को चूज़ करते हैं, इनअप्रोप्रिएट वर्ड्स को चूज़ करते हैं, जो इनफैक्ट उस पर्टिकुलर परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेड जो है उसको शो नहीं कर रहे होते। वो वर्ड्स फॉल्सली शो कर रहे होते हैं, लेकिन एक्चुअली वो उस एक्सपेक्टेड हमारी जो बिहेवियर है उसको शो नहीं कर रहे होते। सो दिस इज़ द बिगेस्ट प्रॉब्लम विच वी हैव टू अवॉइड इट, कि जब हम लेसन प्लान्स के ऑब्जेक्टिव्स बना रहे होते हैं तो वी शुड बी वेरी केयरफुल इन द चॉइस ऑफ आवर वर्ड्स। और इस चॉइस में आप तभी क्लियर हो सकते हैं जब आपके पास आपको बहुत अच्छे से पता है कि जो आपका डिज़ायर्ड परफॉर्मेंस आउटकम है या जो एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस है बच्चे की तरफ से, वो किस पर्टिकुलर डोमेन के अंदर फॉल करती है, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी की कौन सी डोमेन के अंदर फॉल करती है। तो जब तक आपको, अगर आपने ये ठीक तरीके से अंदाज़ा लगा लिया कि जो मैं ऑब्जेक्टिव बना रही हूँ उसका जो परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेड है बच्चे की तरफ, वो कौन सी डोमेन से बिलोंग करती है, कॉग्निटिव डोमेन से है और फर्दर कॉग्निटिव डोमेन के कौन से लेवल से है। फॉर एग्जांपल, अगर आप एनालिसिस की बेस पर कोई ऑब्जेक्टिव बना रहे हैं, जो आपका परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेड है वो आप ऐसी है कि आप बच्चे से एनालिसिस की स्किल की तवक्को कर रहे हैं, और लेकिन फॉल्सली आपने क्या किया है कि एप्लीकेशन लेवल का आपने ऑब्जेक्टिव डेवलप कर लिया है। तो इस तरह से ये आपका जो है वो पुअरली रिटन ऑब्जेक्टिव हो जाएगा कि एक्चुअली आपने जो परफॉर्मेंस सेट की है बच्चे के लिए, क्राइटेरिया जो सेट किया है वो एनालिसिस लेवल को एड्रेस कर रहा है, लेकिन जो आपने उसका वे आउट है, जो आपने चूज़ किया है वर्ड उस इंडिकेट करने के लिए परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेड को, वो आपने एप्लीकेशन लेवल में से चूज़ कर लिया है। क्योंकि अगर आपको याद हो, आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं ब्लूम्स टैक्सोनॉमी को बड़ी डिटेल से, इससे प्रीवियस भी आप डिफरेंट सब्जेक्ट्स के अंदर इसको डिस्कस कर चुके हैं, एंड यू नो वेरी वेल द लिस्ट ऑफ different action verbs which were given by the Blooms in order to differentiate different among different domains। तो उन्हीं वर्ड्स को हम फॉलो करते हैं। जब आप एक लेवल ऑफ डोमेन जो है उसको स्पेसिफिक कर लेते हैं कि मेरा डिज़ायर्ड आउटकम किससे बिलोंग कर रहा है, तो फिर आप ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के उन्हीं एक्शन वर्ब्स को यूज़ करते हैं इन ऑर्डर टू डेवलप इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स। कुछ यहाँ पर कंपैरिजन किया हुआ है विद इन ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के अंदर भी कुछ ऐसे एम्बिगुअस वर्ड्स एक्शन वर्ब्स के तौर पर दिए गए हैं, बट एज अ टीचर अब हमें इस चीज़ को खुद से आइडेंटिफाई करना है कि बड़ा ही स्पेसिफिकली हमारा जो वर्ड हम चूज़ करते हैं अपने इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव को स्टार्ट करने के लिए, और जो एक्सपेक्टेशंस हमारी शो कर रहा होता है कि बच्चा क्या करने के काबिल हो जाएगा, तो वो जो वर्ड है, वो जो एक्शन वर्ब है, वो जितना ज़्यादा प्रैक्टिकल नेचर का होगा
उतना अच्छा और रेलिवेंट आपका इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव बनेगा। जितना ज़्यादा वो प्रैक्टिकल नौयत का नहीं होगा बल्कि एक सुपरफिशियल लेवल का होगा, जस्ट हम चाहते हैं कि बच्चे में बस थोड़ी सी स्किल डेवलप हो जाए, कुछ क्लियर वर्ड नहीं शो कर रहा, तो वो एम्बिगुअस वर्ड्स की लिस्ट होगी। हेयर इज़ अ लिस्ट ऑफ एम्बिगुअस वर्ड एंड उसकी एक बेटर परफॉर्मेंस जो रिप्लेसमेंट है वो भी दी गई है। फॉर एग्जांपल फर्स्ट वर्ड है नो। अगर हम कोई ऐसा ऑब्जेक्टिव बनाते हैं, द चाइल्ड शुड बी एबल टू नो अबाउट वॉट एवर, कोई भी आप एग्जांपल मैथ्स की अगर लेते हैं अबाउट सेट्स, तो सेट के बारे में बच्चा जो है वो जान लेगा, नॉलेज गेन करेगा। दिस इज़ वेरी एम्बिगुअस एंड वेग टर्म। क्या जान लेगा, किस लेवल तक जान लेगा, ये इसमें नहीं स्पेसिफिक हो रहा। सो इसके लिए बेटर जो परफॉर्मेंस वर्ड है दैट इज़ चूज़ और सेलेक्ट। तो अगर जो अप्रोप्रिएट, फॉर एग्जांपल आप बच्चे को एक लिस्ट प्रोवाइड करते हैं जिसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट्स जो हैं वो दिए गए हैं, और आप बच्चे को कहते हैं कि यू हैव टू चूज़ द गुड सेट्स फ्रॉम द गिवन लिस्ट, तो वो जो चूज़ करेगा वो डेफिनेटली ऑन द बेसिस ऑफ नॉलेज करेगा। जब उसको सेट्स का नॉलेज होगा तो वो उसकी बेस पर अच्छे बने हुए सेट्स को चूज़ करेगा। तो नॉलेज की जो एप्लीकेशन है वो चूज़ वर्ड या सेलेक्ट वर्ड के थ्रू हो सकती है। तो इस वजह से नो लगाने की बजाय ज़्यादा बेहतर है कि आप चूज़ का वर्ड यूज़ करें। नेक्स्ट इज़ अंडरस्टैंड। अंडरस्टैंड भी बड़ी वेग टर्म है, क्या अंडरस्टैंड करेगा, किस लेवल तक अंडरस्टैंड करेगा, ये क्लियर नहीं है। तो इस अगर आप ऑब्जेक्टिव इस तरह से बना रहे हैं, द चाइल्ड विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ एडिशन, तो ये बिल्कुल गलत है। इसकी बजाय आप मैथ्स में किस तरह से बना सकते हैं ऑब्जेक्टिव, द चाइल्ड विल बी एबल टू और द स्टूडेंट्स विल बी एबल टू सॉल्व द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन एडिशन या वट एवर, इसके आगे जो भी आप स्टेटमेंट बनाएं। तो अगर आप अंडरस्टैंड की जगह पर सॉल्व का वर्ड यूज़ करें मैथ्स में तो ज़्यादा प्रैक्टिकल है और ज़्यादा अच्छा ऑब्जेक्टिव बनेगा। नेक्स्ट इज़ डिटरमिन। तो क्या डिटरमिन करना है, तो ये भी एक वेग टर्म है और इसकी जगह पर आप इसको रिप्लेस कर सकते हैं विद अ न्यू टर्म दैट इज़ आइडेंटिफाई। सेम इज़ द केस फॉर अप्रिशिएट। तो अप्रिशिएट की बजाय आप लिस्ट का वर्ड यूज़ करें कि लिस्ट करेंगे बच्चे वट एवर, कोई भी जो बच्चों शेप्स के नेम्स हैं तो उनको लिस्ट करवाना है बच्चों से। तो डिफरेंट 6 फॉर एग्जांपल 6 जो हैं वो नेम्स आइडेंटिफाई या लिस्ट करेगा बच्चा, तो वो अप्रिशिएट की जगह पर आप लिस्ट का टर्म यूज़ करें तो वो ज़्यादा अप्रोप्रिएट होगी। ग्रैस्प द सिग्निफिकेंस ऑफ, तो ये भी एक वेग टर्म है, इसकी जगह पे डायरेक्टली आपको लिखना चाहिए अप्लाई कि एक फॉर एग्जांपल द स्टूडेंट विल बी एबल टू अप्लाई द फार्मूला ऑफ वट एवर, जो भी आप आगे उसकी स्टेटमेंट बनाएंगे तो अप्लाई करने के काबिल हो जाएगा, तो अप्लाई का वर्ड यूज़ करें। नेक्स्ट इज़ बिकम फेमिलियर विद। तो इसमें भी यह है कि इसकी जगह पर आप असेंबल का वर्ड यूज़ कर सकते हैं। बिकम अवेयर ऑफ की जगह पर आप एडजस्ट का वर्ड यूज़ कर सकते हैं। लर्न की जगह पर आप अलाइन का वर्ड यूज़ कर सकते हैं। सो डिमॉन्स्ट्रेट की जगह पर या एक कोई अंडरस्टैंडिंग की डिमॉन्स्ट्रेशन आप चाहते हैं तो उसकी जगह पर आप कोई ऊपर जो दिए गए हैं इनमें से कोई भी एक यूज़ कर सकते हैं। सो द क्रक्स इज़ के बी चूजी इन द व्हेन यू आर मेकिंग द चॉइस ऑफ योर एक्शन वर्ब। तो बड़ा ही प्रैक्टिकल किस्म का एक्शन वर्ब चूज़ करें जो कि डायरेक्टली शो कर रहा हो, एक परफॉर्मेंस वर्ड हो, डायरेक्टली शो कर रहा हो कि परफॉर्मेंस लेवल जो है वो हम बच्चे का मैयर कर रहे हैं। तो हमें वेग और एम्बिगुअस किस्म के जो वर्ड्स हैं वो यूज़ नहीं करने चाहिए वाइल वी आर गोइंग टू डेवलप आर इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव। जो मैं आपको अभी मिनी असाइनमेंट देने वाली हूँ इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव को डिज़ाइन करने की, सो बी केयरफुल, उसमें कोई भी कॉमन जो एम्बिगुअस वर्ड्स होते हैं वो नहीं होने चाहिए। यहाँ पर एग्जाम्पल ऑफ वेल रिटन ऑब्जेक्टिव, the students will tell the time represented on an analog clock to the nearest minute। ठीक है, अब ये एक हमारे पास एग्जांपल है और बिल्कुल एक बेसिक लेवल की एग्जांपल है, बेसिक मैथ्स के अंदर से है। तो इसमें आप देखें टेल द टाइम। अब टेल द टाइम जो है ये हमने कहा कि ये परफॉर्मेंस ऑब्जेक्टिव है। परफॉर्मेंस रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, कौन से वर्ड्स हैं जो कि बच्चे की परफॉर्मेंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दैट इज़ टेल द टाइम। इट मीन्स के वर्बल है, हम वर्बल परफॉर्मेंस बच्चे से एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और एनालॉग क्लॉक है रिप्रेजेंट्स द कंडीशन कि जो प्रोवाइडेड होगा बच्चों का वो एक एनालॉग क्लॉक होगा जिसके ऊपर बच्चा टीचर जो है वो डिफरेंट उसकी जो नीडल्स होती हैं उनकी प्लेसमेंट जो है वो डिफरेंट शो करके बच्चे से पूछेगी कि इसके ऊपर क्या टाइम हुआ है। तो वो जो एनालॉग क्लॉक है वो गिवन कंडीशन होगी।
टू द नियरेस्ट मिनट। ये जो नियरेस्ट मिनट है ये हमें बता रहा है, ये हमें रिप्रेजेंट कर रहा है स्टैंडर्ड को, कि बच्चा जो है वो मिनट्स में भी टाइम जो है उसको आइडेंटिफाई करने के काबिल होगा, सिर्फ आवर्स नहीं मिनट्स भी आइडेंटिफाई करेगा। तो ये एक बड़ी स्पेसिफिक हो गया कि एक्सेप्टेबल क्राइटेरिया है कि जब तक वो मिनट्स नहीं बताएगा तब तक वो उसका टाइम जो वो बता रहा है वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा। तो इसको हम, ये एक एग्जांपल है वेल रिटन ऑब्जेक्टिव की। ये एक और एग्जांपल आपको दी जा रही है, दैट इज़ अ पुअरली रिटन ऑब्जेक्टिव, और ये है जी द स्टूडेंट्स विल नो हाउ टू टेल टाइम। व्हाट इज़ दिस? यू कैन इमेजिन कि कुछ बच्चे आप में से ही और कुछ टीचर्स भी इवन इस किस्म के वेग ऑब्जेक्टिव्स बना लेते हैं, पुअरली राइट डाउन कर लेते हैं, द स्टूडेंट्स विल नो हाउ टू टेल टाइम। तो ये कोई रिटन ये कोई इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव नहीं है, ये एक पुअरली रिटन ऑब्जेक्टिव है। और इसके ऑपोजिट मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड में जो ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि ज़्यादा बेहतर तरीके से आप इस तरह से इसी ऑब्जेक्टिव को स्टेट कर सकते हैं कि द स्टूडेंट्स विल टेल द टाइम रिप्रेजेंटेड ऑन एन एनालॉग क्लॉक टू द नियरेस्ट मिनट। तो ये जो हमारे पास एक एग्जांपल मैंने आपसे शेयर की है, इसमें जो हमारे तीनों स्टेप्स हैं वो यूज़ हो रहे हैं। मैंने पहले भी आपको बताया कि एटलीस्ट आपका जो एक अच्छा इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव है उसमें 2 स्टेप्स को ज़रूर फॉलो कर रहा हो। कंडीशन गिवन होनी चाहिए और जो परफॉर्मेंस आउटकम एक्सपेक्टेड है वो ज़रूर उसके अंदर स्टेट होना चाहिए। स्टैंडर्ड का जो पोर्शन है वो ऑप्शनल है, अगर आप उसको बना लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर आप नहीं भी बनाते तो फर्स्ट 2 स्टेप्स जो हैं उनको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। In order to more clarify your concept, here is again a bad objective stated, the student will demonstrate metric measurement of length। बेटर वे में इसको हम कैसे कर सकते हैं? गिवन अ मीट्रिक रूलर द स्टूडेंट्स विल मेजर द लेंथ ऑफ कॉमन लीनियर ऑब्जेक्ट्स टू द नियरेस्ट मिलीमीटर, यानी मिलीमीटर तक जो है वो हमें बताएंगे कि कितने मिलीमीटर की लेंथ है इसकी। तो ये इसमें गिवन, उसमें कंडीशन भी हो गई है, इसमें डिज़ायर्ड आउटकम भी हो गया है, और जो है वो स्टैंडर्ड भी गिवन है जो कि नियरेस्ट मिलीमीटर है। सो मैंने आपको 2 अच्छी एग्जांपल्स दी हैं इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैथमेटिक्स की। नेक्स्ट जो है वो आपके लिए एक छोटी सी असाइनमेंट है, और असाइनमेंट देने से पहले मैं आपको एक और एग्जांपल दे दूं डिफ्रेंशिएट करने के लिए बिटवीन बैड एंड बेटर जो इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव है। बैड ऑब्जेक्टिव इज द स्टूडेंट विल सॉल्व एडिशन प्रॉब्लम्स विद 80% एक्यूरेसी। क्योंकि जब हम बड़ा वो पढ़ाते हैं कि तीनों चीज़ें आपने इंक्लूड करनी है, तो अब देखें अपेरेंटली इस स्लाइड के अंदर तीनों चीज़ें इंक्लूडेड हैं। स्टूडेंट्स विल सॉल्व जो है वो एक अच्छा मैथ्स के अंदर प्रैक्टिकल वर्ड है, जो एक प्रैक्टिकल एक्शन वर्ब है जो आप यूज़ कर रहे हैं। एडिशन प्रॉब्लम्स हमने बता दिया कि वो कर लेंगे, और 80% एक्यूरेसी यानी हमने एक स्टैंडर्ड भी दे दिया है, लेकिन स्टिल ये एक पुअरली रिटन है। अब आप इसका वेल रिटन स्टेटमेंट देखेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि ये कैसे एक पुअरली रिटन स्टेटमेंट है। गिवन 2 numbers नॉट रिटन इन इक्वेशन फॉर्म, द स्टूडेंट्स विल प्लेस द नंबर्स इन इक्वेशन फॉर्म एंड ऐड देम टुगेदर। तो इसको हमने इलेबोरेटिव वे में, ये एक बहुत ज़्यादा अच्छा तरीका है, यानी बैड रिटन फॉर्म जो है उसकी बजाय ये एक बेस्ट वे जो है, बेस्ट वे मैंने आपको बताया है कि एक बहुत अच्छा ऑब्जेक्टिव बनाने का ये पैटर्न है जो आपके सामने गिवन है। Now what I expect from you is that if you are able to develop a good instructional objective according to Bloom's taxonomy, तो इन तीनों को कवर करते हुए आप बस इस चीज़ को जहन में रखिए कि आपकी जो डिफरेंट जो तीनों कोग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर डोमेन है, उन तीनों में से कोई भी एक एरिया अगर आप चूज़ करते हैं, उसका कोई एक लेवल चूज़ करते हैं और उसकी बेस पर इंस्ट्रक्शन ऑब्जेक्टिव्स बनाते हैं, तो आपने वो मेंशन भी करना है कि ये कौन से लेवल का इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव है और उसकी बेस्ट फॉर्म जो है वो आपने मेंशन करनी है। सो आपने एटलीस्ट 5 इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स फ्रॉम एनी ग्रेड लेवल बुक ऑफ मैथमेटिक्स, किसी भी ग्रेड की बुक में से कोई भी यूनिट लेके, कोई भी एक्सरसाइज लेके, उसमें से 5 डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स, इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स आपने डेवलप करने हैं और वो आपने मुझसे शेयर करने हैं। असाइनमेंट जो है वो आप अपने गूगल क्लासरूम में अपलोड करेंगे। थैंक यू।